I was, brought into this world and with a hope that this time the third child definitely is going to be a Munda. When I arrived, people had their jaws dropped because it was a Kudi again. Oh. So a lot of disappointment. That was first shock that oh, this is a girl again. Amidst all the mixed feelings of happiness and a little bit of non-acceptance, there was a turning point when I was probably 7, 8 months old. And that's when my parents, figured out that there is something which is not usual in this child. कुछ तो अलग है, कुछ कमी है. My parents noticed that there is some sort of abnormality in the way I look at things. नमस्कार दोस्तों, कहानी हम सब की में मैं मनीष बयानी आप सबका प्यार भरा स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, अच्छे ही रहना। दोस्तों, हमारी द रियल लाइफ हीरो की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहा हूं जिनको नेशनल अवार्ड मिला है, और वो भी हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के शुभ हस्तों से। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संस्था से भी उन्हें अवार्ड मिला है। उन्हें संगीत विशारद की उपाधि भी प्राप्त हुई है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं। तो बजाय इसके कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं, आइए हम उन्हीं से सुनते हैं उनकी कहानी। तो दोस्तों, मिलिए हमारे आज की मेहमान से, श्रीमती निकिता वसंत राउत। Nikita, it's a great pleasure having you here with us on our channel Kahani Hum Sab Ki. Thank you so much for being here today and accepting our invitation. Thank you so much, Manish ji. It's an absolute honor and a privilege for me to be here with you on this beautiful morning and amidst the nature and with all of you. Thank you so much. Yes. In fact, itni curiosity hai, Nikita, to know about your life. So let's start, Nikita, from your childhood. कैसा बचपन था, और what are those moments of your childhood which you would really want to share with us? ठीक है. So before I start, सभी श्रोताओं को, सभी सुनने वालों को मेरा एक बहुत ही प्यार भरा नमस्कार. And once again, thank you for having me here. Pleasure. So अगर हम मेरी childhood की बात करें, तो I go down the memory lane almost 37 years ago. Oh, okay. That's when I was born. वैसे लड़कियां अपनी age नहीं बताती, but मुझे इस चीज से कोई problem नहीं है. So I was born in a traditional Punjabi family. अच्छा. Right? And I was born as the youngest child. अच्छा. Okay. So मेरी already दो बड़ी sisters हैं. अच्छा. And I was born as the third child. And those times, there always used to be sort of an expectation कि लड़का तो होना चाहिए. पंजाबी में कहते हैं उसे मुंडा तो चाहिए. Right? So that's how I was, brought into this world, and with a hope that this time the third child definitely is going to be a Munda. Okay. Right? So lot of anticipation. जैसे वो stock market में लोग आंखें लगा के रहते हैं, ठीक उसी तरह when I was going to be born, everybody had speculated that this is going to be a baby boy definitely. Okay. But obviously when I arrived, people had their jaws dropped because it was a Kudi again. Oh. So a lot of disappointment, especially in the older ladies in the family. Okay. Right? Of course, my parents were pretty okay with it. They were always very positive. Wonderful. So that was first shock that oh, this is a girl again, right? However, I was very cute, I think. This is what I've been told. And I was a very cute, naughty child. अच्छा. But something turned, Manish ji, amidst all the mixed feelings of happiness and a little bit of non-acceptance. There was a turning point when I was probably
7-8 months old, and that's when my parents figured out that there is something which is not usual in this child. कुछ तो अलग है, कुछ कमी है। तो वो कमी क्या है वो समझ नहीं आ रहा था किसी को, until I started crawling or maybe baby walking. And what happened when I started crawling or walking, I would just go and dash into things. मेरी टक्कर लग जाती थी. And that's when my parents realized कि कुछ गड़बड़ है. They took me to a lot of doctors and all. So the doctor said probably she's quite weak, छोटी है, अभी समझ नहीं आ रहा. किसी ने baby tonic दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया. So it went on. But probably when I was 8 months old, my parents noticed that there is some sort of abnormality in the way I look at things. So they did take me to an ophthalmologist, which gave them the shock of their life. वो eye doctor जो थे, उन्होंने मेरे parents को एक ऐसी बात बताई जो कभी मेरे पेरेंट्स ने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी. एंड दे टोल्ड देम, उन्होंने ये बताया कि मैं दोनों आंखों से 100% ब्लाइंड हूँ. मैं बिल्कुल देख नहीं सकती. और ये ब्लाइंडनेस मेरी बाय बर्थ है. So you can imagine, the plight of the family, the plight of the parents. So जो रिश्तेदार मेरे मम्मी पापा को सलाह देते थे to go for a third child and in expectation of having a son, they started saying अरे इससे अच्छा तो आप नहीं करते. आपका third child होता ही नहीं. So obviously my parents had sleepless nights and worrying days. But वो कहते हैं ना कि भगवान हिम्मत दे ही देते हैं. तो फिर कुछ टाइम बीता and they came into the terms of the reality, and then they sort of accepted that okay, whatever it is, जो भी है, she's a God sent child to us. And even though she cannot see, we don't know how, but we are going to be giving her the best life that we can. और जिस तरह से हमने अपनी बाकी 2 बेटियों को पाला है, बड़ा किया है, ठीक उसी तरह हम इसको भी संभालेंगे, पालेंगे. So with this positive thought in mind, the challenges began. And challenges तो हर तरह के थे उस समय. पढ़ाई कैसे करेगी, लड़की है, अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेगी, शादी कैसे होगी, 100 कई सारे सवाल आए होंगे. कई सारे, आप समझ सकते हैं एक मदर और एक फादर के मन में कितने सारे सवाल होते होंगे. मेरी जो 2 बड़ी बहनें थी बहुत केयरिंग थी, बट दे ऑल्सो हैड सो मेनी क्वेश्चंस कि ये ऐसे कैसे हो सकता है, how is it that she cannot see. But anyways, मतलब चलता रहा. Every day, every minute was a discovery, every minute was a learning कि इस बच्चे को हम कैसे सिखाएं चीजें. नॉर्मल बच्चा होता है छोटा, हम उसको दिखाते बेटा ये ब्लू कलर है, ये रेड कलर है, या वो स्काई है, वो कार है, तो इस बच्चे को हम कैसे सिखाएं. तो माय पेरेंट्स बट दे डिड, उन्होंने हिम्मत बिल्कुल नहीं हारी. दे केप्ट ऑन एक्सप्लेनिंग मी थिंग्स, जितना पॉसिबल होता था टच से, फील से, आवाज से मुझे बताते थे. एंड ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि मैं बहुत नॉटी चाइल्ड भी थी. आई वाज नॉट अ वेरी सीरियस वन. इस मोमेंट पे मैं सबसे पहले तो आपके माता पिता को नमस्कार. यस, डेफिनेटली. बिल्कुल. राइट. तो मैं बता दूं कि मेरे पेरेंट्स, लाइक माय फादर, ही लेफ्ट दिस वर्ल्ड लास्ट ईयर. 1.5 साल पहले उनकी कोविड से डेथ हो गई. But I always feel, his blessings are with me. Absolutely. And so then coming a little ahead, सबसे बहुत important पढ़ाव जो आता है जिंदगी में, वो स्कूल एडमिशन का आया हमारे लिए. अभी आज तो बहुत सारी अवेयरनेस है, बहुत सारी चीजें चेंज हो गई हैं, लोग बहुत सेंसिटिव हो गए हैं. ऑफ कोर्स वो बहुत बाकी है, बट फिर भी. बट उस जमाने में तो ऐसे था कि ब्लाइंड बच्चा है तो ब्लाइंड स्कूल में ही जाएगा, या घर रह के पढ़ेगा, या पढ़ाई नहीं करेगा, या सिर्फ अगर कोई संगीत का टैलेंट है तो वो संगीत करेगा. So but my parents were very very clear that our daughter is going to get the education which a normal child is getting, or even more. Wow. So with that result, they did not know how to do, what to do, whom to approach.
सो बहुत स्कूल हंट हमारी शुरू हुई। अच्छा। जितने भी विसिनिटी में स्कूल थे या जिस स्कूल में मेरी सिस्टर्स जी। पढ़ती थी, जी। वो स्कूल वाले तो मुझे देखते भी नहीं थे। अरे बाप रे। मतलब दे वुड इवन रिफ्यूज टू इंटरव्यू मी, right? Oh my So God. for the only reason that I was blind, and sad. then you know my parents did also try admitting me in a blind hostel, Okay. but वहाँ का कुछ environment ठीक नहीं लगा, and then you know they got a setback and they said nothing doing, हम इसको अपने साथ रख के पढ़ाएंगे अच्छा। किसी भी तरह, but we will not leave her in you know isolation, Right. isolated environment. Right. Right. And then वो कहते हैं ना कि God helps those who help themselves, right? Absolutely. तो Absolutely. उस दौरान अगर ये आप जानते होंगे नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड, जी। NAB, जी। it is a institution, it's an organization which works towards the upliftment of the blind individual. Right. तो उनके संपर्क में मेरे पेरेंट्स आए, और उस इंस्टीट्यूट की जो यू नो थीम थी उस समय की, या फोकस एरिया जिसे हम कहते हैं, जी। वो ये था कि जो नॉर्मल स्कूल्स हैं उन्हें एनकरेज करना टू एडमिट द ब्लाइंड स्टूडेंट्स। अच्छा। एंड मेरे घर से कुछ ही दूर एक छोटा सा स्कूल उस समय उसी साल ओपन हुआ था, शायद वो मेरे लिए ही ओपन हुआ हो। सो उस स्कूल की, दैट इज मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ, किंग जॉर्ज इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, राइट? सो उसकी एक ब्रांच मुलन में ओपन हुई थी। अच्छा। एंड उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ठीक है, दो वी डोंट हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ एडमिटिंग अ ब्लाइंड चाइल्ड, बट हम कोशिश करेंगे, वी विल गिव हर एडमिशन। एंड उसी तरह मेरी एडमिशन हुई, और हर दिन स्कूल में भी एक नया चैलेंज होता था, यू नो, मेरे लिए ही नहीं बट मेरे टीचर्स के लिए, और मेरे आसपास के जो क्लासमेट्स बाकी बच्चे होते थे, क्योंकि उनके लिए तो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है ना। 60-70 बच्चों की क्लास में एक लड़की ऐसे जो देख ही नहीं सकती, और मेरी आंखों को देख के शायद लगता भी नहीं है कि मुझे दिखाई नहीं देता। तो यू नो फॉर देम, फॉर द चिल्ड्रन, आई मीन आज तो मैं हंस के आपको बताती हूँ, बट उस समय मैं बहुत रोती थी। बट वो बच्चों को तो ऐसे लगता था कि मैं टॉय हूँ, you know, somebody to sort of tease or somebody जिसका मजाक बना सकता है, या बिकॉज छोटे बच्चे थे। बट ऑफ कोर्स उनमें भी कई बच्चे थे सेंसिटिव who would help me out, but a lot of them would also you know tease me, मजा लेते थे मेरी, you know, मुझे अंधी है ऐसे बोल के चिढ़ाते थे। So of course that time it was quite hurting, and I would just lock myself in the bathroom or dug my face into the pillow and cry, but ठीक है, you know, that is how it was at that point in time. Coming back to studies, so obviously मैं बाकी बच्चों की तरह ही उन्हीं के साथ क्लास में बैठ के पढ़ाई करती थी। सिर्फ ये फर्क होता था कि बाकी बच्चे जैसे क्लास में अपने ब्लैक बोर्ड से देख के नोट्स लिख लेते थे, मैं सिर्फ सुनती थी जो टीचर कह रही है। आई यूज्ड टू ओनली लिसन टू इट, एंड देन घर आने के बाद मुझे उसकी डबल मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं मतलब ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ तो देख नहीं सकती थी, तो आई वुड गेट somebody's book home, and then I had a reader or a tutor who would read out to me, and I would write it in braille. आप लोगों ने अगर ब्रेल लिपि सुनी हो, राइट, जो लिपि जिसे हम हाथ से पढ़ते हैं, तो मैं वो पूरे नोट्स को ब्रेल में लिखती थी। काफी चैलेंजिंग होता था, बट you know, as a child also I was aware or I was sensitive to the fact that मुझे ये नहीं पता था जब मैं 4-5 साल की थी, छोटी बच्ची थी, या मे बी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में होगी, मुझे एक्चुअल में सही मायनों में ब्लाइंड होना क्या होता है इसका इतना you know realization नहीं थी। मतलब I did not know what it actually means. You know, there used to be hundreds of questions in my mind कि ऐसा क्यों है, मैं क्यों अलग हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक यू नो एक ये बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि कोई बात नहीं, अगर मैं डिफरेंट हूँ तो आई मस्ट यू नो मेक माई सेल्फ सो स्ट्रॉन्ग दैट मैं किसी से पीछे ना रह जाऊँ, यू नो। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी हुई थोड़ा और यू नो आगे स्कूल में मैं गई, सो आई वाज वेरी क्लियर विद वन फैक्ट कि कल को जब लोग मुझे देखें तो मेरी आइडेंटिटी मेरी ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, यू नो। वो लड़की जो देख नहीं सकती वो मेरी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। मेरी आइडेंटिटी ये होनी चाहिए कि वो लड़की जो
क्लास में फर्स्ट आती है, वो लड़की जो बाकी चीजों में अव्वल है, राइट। सो क्या बात और वही स्पिरिट है जो अब तक मुझे विच कीप्स मी गोइंग इवन नाउ। तो वो थॉट हमेशा से रहा। क्या बात है निकिता, मेरे पास शब्द नहीं है कुछ बोलने के लिए कि कई बार हम तो निकिता ये सब कुछ होने के बावजूद भी इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं किसी चीज को लेकर के, गिव अप कर देते हैं बहुत सारी चीजों को लेकर के, लेकिन आपको आज सुन के माय गॉड आई कांट एक्सप्रेस माय इमोशंस। I am humbled. Thank you for that compliment. But मैं यही चाहती हूँ और मैं हमेशा से समझती हूँ कि लाइफ एक एक्सपीरियंस है और किसी भी सिचुएशन में हमारी क्या चॉइस है वो हमारे हाथ में है। कि उस सिचुएशन में हम चुपचाप बैठ के डिप्रेस होके रो लें या चीजों को जाने दें या उठ के खड़े होके वे आउट निकाल के अपने काम करें। चॉइस हमारे हाथ में है, सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती, बट हम कैसे रिएक्ट करें वो हमारे हाथ में है। क्या बात है। तो आगे चलते हैं। स्कूल में तो हर दिन चैलेंज आता रहा, हर दिन अपॉर्चुनिटी आती रही, हर दिन एक सोल्यूशन निकल के हम आगे चलते रहे। इट वाज अ ग्रेट लर्निंग फॉर द टीचर्स आल्सो, बिकॉज मैं फर्स्ट ब्लाइंड स्टूडेंट थी। फिर हम आते हैं जब 10th स्टैंडर्ड। अच्छा, बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन होगा कि मैं एग्जाम्स कैसे लिखती हूँ। हाँ बिल्कुल, यही मैं एक्चुअली आ ही रहा था मेरे दिमाग में कि किस तरह से आप देखिए, वी आर सो कनेक्टेड, मैंने आपके मन की बात समझ ली। क्या बात है। तो जो एग्जाम्स होते थे वो यूजुअली ऐसा होता था कि क्वेश्चन पेपर तो मेरे लिए सेम होता था। द ओनली डिफरेंस यूज्ड टू बी कि मैं बोलती थी और कोई और बच्चा लिखता था। हाँ, जो राइटर जिसे हम स्क्राइब कहते हैं या राइटर कहते हैं। तो और रूल ये था, अब तो खैर रूल्स काफी चेंज हो गए हैं, बट उस समय पे रूल ये था कि जो राइटर है वो मुझसे क्वालिफिकेशन वाइज एक ग्रेड, कम से कम एक ग्रेड नीचे होना चाहिए। सो मान लीजिए अगर मैं 7th स्टैंडर्ड का पेपर दे रही हूँ तो मेरा पेपर 6th स्टैंडर्ड का बच्चा लिखेगा। तो इसमें दो चीजें मैं कहना चाहूंगी। एक तो मैंने कई बच्चों को देखा है, आई यूज्ड टू ऑलवेज फील कि कितनी मेहनत कर रहे हैं मेरे लिए, क्योंकि 3 घंटे किसी और का पेपर लिखना आसान बात नहीं होती। ठीक है, सो माय ब्लेसिंग्स एंड माय गुड विशेस गोज टू ऑल माय राइटर्स जो आज भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, राइट। और ऑफ कोर्स चैलेंज होता था, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हम कुछ बोल रहे हैं, हमारी प्रोनाउंसिएशन अगले बच्चे ने नहीं समझी, नहीं सुनी, तो वो गलत हो जाता था, स्पेलिंग गलत हो जाती थी, या मैंने कोई स्पेलिंग गलत बोल दिया बट उन्होंने गलत सुना। वो दैट इज वेरी ह्यूमन एंड नेचुरल। तो कई बार मेरे मार्क्स उसकी वजह से कटते थे। तो पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, बट जब मैं आपको चॉइस की बात बता रही हूँ तो मैंने अपने लिए एक फॉर्मूला रख लिया था कि ये तो मिनिमम एरर्स हैं, ये तो होंगे ही होंगे, राइट। सो कम से कम अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे 100 मार्क्स में से कम 90 मार्क्स मिले, तो 10 मार्क्स तो मेरे स्पेलिंग्स या बियॉन्ड माय कंट्रोल की वजह से चले जाएंगे, दैट इज ओके। बट जो 90 मार्क्स हैं, कम से कम मैं अपनी प्रिपरेशन 100% नहीं 200% करूँ, ताकि जो मेरे हाथ में है एटलीस्ट उसमें मुझे फुल मार्क्स मिले। अमेजिंग। मतलब ये कहना पड़ेगा कि आप 100 के लिए ही सोचती थी, ये नहीं था कि चलो पास हो जाओ तो बहुत है। क्या बात है। तो उस लेसन को मैं आज भी ध्यान में रखती हूँ, एंड आई ऑलवेज फील दैट एवरी टाइम व्हेन आई कोरिलेट, आई फील कि सिचुएशंस हमेशा हमारे फेवर में नहीं होती। वो एक 10% 15% का बफर हमें हमेशा रखना होता है, बट देन यू प्रिपेयर फॉर द बेस्ट एंड ultimately you will get what you deserve. I mean, you'll get the best. Amazing. क्या बात है। बहुत पता नहीं इतनी इंस्पिरेशन मिल रही है। अब तो लगता है कि आज आपसे बात करने के बाद हम तो अब जाकर के बहुत कुछ करने वाले हैं और ये सिचुएशन के सामने झुकने वाले नहीं है निकिता। Definitely. Amazing. So great. I'm so happy if you're liking this conversation. But मैं बिल्कुल भी आपको अपनी दिल की बातें बता रही हूँ। आप बहुत मजा आ रहा है क्योंकि मेरी स्टोरी है, so I'm just sharing my heart out with all of you. Thank you so much. Thank you so much. तो फिर स्कूल का आपका एक 10th स्टैंडर्ड के बाद फिर क्या आपकी उस वक्त मेंटल स्टेट थी कि अब आगे क्या करना है, ये सारी बातें कैसे डिसाइड हुई, क्या सोच रही उस वक्त?
राइट, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा, बिकॉज अगेन मेरी लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स आए, यू नो, जी। रादर मैं उनको टर्निंग पॉइंट्स नहीं, मैं उनको माइलस्टोन्स कह सकती हूँ. Right, yeah. So I had always been a meritorious student in the school. ठीक है, Wow. हमेशा क्लास में फर्स्ट सेकेंड आना या जो भी है. आपके लिए बिल्कुल तालियां बनती है. थैंक Wow. यू. तो जब 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स हुए, मैं तब भी मेरिट में आई थी, एंड आई वाज अच्छा। वेरी क्लियर कि मुझे, मैं जब छोटी थी ना, हाँ। 6th 7th स्टैंडर्ड में, हाँ. तब से मैं बहुत क्लियर थी कि आई एम गोइंग टू बी ईदर अ बिजनेस वुमन Okay. और अ कॉर्पोरेट वुमन. मतलब वो कॉर्पोरेट क्या होता था ये तो उस समय नहीं पता था, Right. बट मेरे माइंड में जो एक इमेजिनेशन थी, बड़ा सा ऑफिस, बड़ी हाँ। सी कुर्सी, हाँ. और बहुत अच्छा काम मैं कर रही हूँ, इंग्लिश में बोल रही हूँ, और Wow. लाइक एज अ चाइल्ड दिस यूज्ड टू बी माय इमेजिनेशन. Fantastic. और अदरवाइज अपने डैड जैसे, माय डैड हैड अ स्मॉल बिजनेस, सो Okay. उनके बिजनेस में आई एम टेकिंग ओवर फ्रॉम हिम और समथिंग, यू नो, सो दीस वर माय लाइंस ऑफ थॉट. Lovely. So और ये थॉट कैसे हुआ? हाँ. अगेन लेट मी टेल यू, जी. एडवर्सिटी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी. Wow. ओके, सो जब हम, मैं स्कूल में थी 6th 7th स्टैंडर्ड में वगैरह, जी, तो नॉर्मल बच्चे जब समर वेकेशन होती थी, जी. तो बच्चे क्या करते हैं, आमतौर पे खेलते हैं हाँ. आसपास के बच्चों के साथ. हाँ, बट बिल्कुल. मुझे, बिकॉज आई वाज ब्लाइंड, हाँ. कोई बच्चा मेरे साथ खेलने के लिए रेडी नहीं होता था. अच्छा. ओहो. एंड दे ऑलवेज हैड अ फियर के यू नो, आपको दिखता नहीं है, आप गिर जाओगे, लग जाएगा तो टीचर हमें गुस्सा करेगी या हमारे पेरेंट्स हमें गुस्सा करेंगे, तो हम क्यों आपके वजह से डांट खाएं. My God. सो फॉर द आउटडोर गेम्स स्पेशली मेरे साथ बच्चे खेलते नहीं थे, ओहो. तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी. 2 महीने क्या करूं छुट्टियों में. हाँ. सो वन फाइन डे मॉर्निंग में बहुत उदास थी, मैं रो रही थी काइंड ऑफ. सो माय फादर आस्क्ड मी क्या हुआ. हाँ. मैंने उन्हें बताया कि मैं बोर हो जाती हूँ, हाँ. मेरे साथ कोई बाहर बच्चे खेलते नहीं है, तो हाँ. मैं क्या करूं छुट्टियों में. हाँ. तो ही फिर चलो ठीक है, तुम मेरे साथ तैयार हो जाओ, मेरे साथ मेरे ऑफिस चलो. अब अच्छा. उन्होंने तो उस समय मन बहलाने के लिए मुझे ले गए अपने साथ. हाँ. हाँ. पर जब मैं गई वहां पर, आई जस्ट थॉट कि क्यों ना मैं अपनी सारी छुट्टियां पापा के साथ ऑफिस में उनकी मदद करने में बिताऊं. जी. And I started working with him. Working मतलब I started, you know, operating his telephone and everything. And I memorized all his phone numbers, जो भी उनके clients के या जितने भी उन्हें calls करने होते थे. अब उस समय तो मोबाइल होता नहीं था कि आप हाँ, नंबर स्टोर हाँ. कर लो. Correct. Right, so I started, you know, fully involving myself in understanding the business and the Wow. nuances of it. And thereafter, even I would get a 1-day holiday, I would run to his office. So वहाँ से वो इंटरेस्ट मुझ में पैदा हुआ टू, यू नो, बिकम अ बिजनेस वुमन और अ कॉर्पोरेट वुमन. That's amazing. So coming back to my 10th standard, जी. so I was very clear that after my 10th standard I will be taking up commerce, and Okay. मैं कॉमर्स करने के बाद मैं BCA कर लूंगी, and I will enter into the business or the professional corporate side of it. Okay, but there was something जो कुछ अलग हुआ मेरे सोचने से. अच्छा. तो बहुत सारे लोगों ने, इंक्लूडिंग माय वेल विशर्स, माय टीचर्स एंड एवरीबॉडी, दे स्टार्टेड सेइंग कि बेटा तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, बट हाँ. तुम कॉमर्स नहीं ले सकती. अच्छा. एंड आई वाज लाइक क्यों ऐसा कह रहे हैं? हाँ. बिकॉज दे सेड दैट कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं व्हिच आर विजुअल इन नेचर, राइट? सो यू हैव बैलेंस शीट, यू हैव अकाउंट्स, यू हैव Right. फाइनेंस एंड Right. ऑल ऑफ दैट. हाँ. तो तुम कैसे करोगे? हाँ. एंड हाउ विल यू एक्सप्लेन योर राइटर? Right. How will you give exams? Correct. It will not be possible for you. So you are good in theory. Why don't you take up arts and, you know, maybe you can become a teacher or something of that sort. अच्छा. So of course I was not happy with this advice, हाँ. definitely. But हाँ. at that point of time, मैं इतनी mature नहीं थी to, you know, put everybody's advice aside and go हाँ. and do my mercy, right? हाँ. So I had to sort of give in to the pressure, and I took up arts. ओ अच्छा. शुरुआत आर्ट से हुई. आर्ट से हुई. 11th and हाँ. 12th अच्छी कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई. Okay. आई डिड वेरी वेल इन आर्ट्स आल्सो, बिकॉज Alright. मेरा था कि जिस चीज में हाथ डालना है फिर जी जान से उसे करना है, यू नो. Wow. तो 11th and 12th मैंने अच्छे से किया. इनफैक्ट 12th में भी आई वाज द मेरिट होल्डर. Which college was that? I was in Kelkar College, which is known as VG Vazir College in Mulund. Mulund is where we stay.
Right. So it was again for that college also probably I was the first blind student. So you know a अच्छा, lot उसके लिए of भी पहला मैं एक्सपीरियंस था। इनफैक्ट जहाँ भी गई हूँ most of the time I've been the first blind student. ओह, तो कॉलेज में ऐसे रहा कि सब कुछ ठीक था बट कहीं ना कहीं मुझे डीप डाउन विद इन आई वाज हैविंग दिस फीलिंग कि मेरे को 100% सेटिस्फैक्शन नहीं आ रही. okay, And okay. my inner voice kept on telling me that no, blindness cannot decide what I'm going to be as a career, right? Blindness cannot be a deciding factor. So it's Yeah. my willpower, it's my intelligence which will decide, not my Super. disability. Super. So I started manifesting. अब उस समय तो ये वर्ड manifestation पता भी नहीं थी. आज हम लोग बहुत बोलते हैं law of हाँ. attraction का manifesting. बट उस समय मैंने एक बिल्कुल बहुत स्ट्रांगली अपने माइंड में सोचा था कि नहीं मुझे कुछ तो करना है. जी, जी, एंड अगेन गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. तो उसी समय मुंबई यूनिवर्सिटी में ये बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जैसे हम बीएमएस या जी. बीबीए कहते हैं आज जी, की डेट में, जी, वो कोर्स इंट्रोड्यूस हुआ था. okay, एंड आई जस्ट ले माय हैंड्स ऑन द सिलेबस ऑफ दैट कोर्स. okay, एंड आई वाज सो हैप्पी टू नो कि ये बिल्कुल परफेक्ट कोर्स है मेरे लिए. जी, जी, So I decided कि मैं इस कोर्स को करूंगी because that was a business oriented course. right, या वो बिजनेस का जो आपने Yes, सोचा था उसके yes. कनेक्टेड था। Absolutely, but you know, ride was not smooth. So Wow. when I went to the university department to take the form हाँ. for filling up for the entrance exam, हाँ. वो जो क्लर्क साहब थे वहाँ पे फॉर्म देने वाले, जी, उन्होंने बिल्कुल जब ये जाना कि मैं ब्लाइंड हूँ, हाँ. तो बोलते अरे अरे आप यहाँ क्या करने आए हो, आपको तो हम ये फॉर्म नहीं दे पाएंगे. तो दोस्तों ये थी निकिता की अब तक की कहानी. बचपन की अगर बात करें तो निकिता ने हमें बताया कि उनके परिवार के सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 बेटियां होने के बाद अब तीसरा बेटा जरूर होगा, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था कि तीसरी भी बेटी पैदा हुई. और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उन्हें ये पता चला कि ये जो बेटी है ये बचपन से ही दोनों आंखों से ब्लाइंड है, तो और भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग सबके लिए हुआ, क्योंकि सब तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुंडा होगा, लेकिन हुई कुड़ी और ये दूसरी बात. लेकिन इसके बावजूद निकिता के माता पिता ने निकिता को वो सारी बातें दी, वो सारी चीजें दी जो उन्होंने अपनी बाकी 2 बेटियों को दी थी. बिल्कुल उसी तरह से निकिता का पालन पोषण हुआ. तो हमें यही सीखना है कि बच्चे जो है ये गॉड्स गिफ्ट होते हैं. हर बच्चा जब जन्म लेता है, हर बच्चा स्पेशल होता है, हर बच्चा अपना भविष्य, अपना डेस्टिनी साथ लेकर के आता है. आज भी हम में से कई लोग ये उम्मीद करते हैं कि बेटा ही पैदा हो, और हम सब चाहते हैं कि बच्चा हेल्दी हो. लेकिन यदि ऐसा ना भी हुआ तो हम इन बच्चों का तिरस्कार ना करें, क्योंकि बच्चे भगवान का क्रिएशन है, और अगर हमने इनका तिरस्कार किया तो भगवान के क्रिएशन का ही तिरस्कार करने जैसा होगा. निकिता जब स्कूल में जाने लगी थी तो बाकी जो सारे बच्चे थे उनके लिए निकिता जैसे एक खिलौना थी. वो समझ नहीं पा रहे थे किस तरह से निकिता के साथ डील किए जाए, और कई बच्चों ने निकिता का मजाक भी उड़ाया था. तो यहाँ पर एज पेरेंट्स हमारा रोल कितना इंपॉर्टेंट है ये बात सामने निकल कर आती है. हम अपने बच्चों को जो किताबी शिक्षा है वो तो देते ही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि हम उस शिक्षा के साथ साथ बच्चों में एक सेंसिटिविटी लेकर के आए, बच्चों को दूसरों के प्रति संवेदनशील बनाएं, ताकि अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो कि स्पेशली एबल्ड है, डिफरेंटली एबल्ड है, या किसी और से किसी तरह से कमजोर हैं, तो बच्चे उनका मजाक ना उड़ाएं. तो कहने का मतलब यही है कि हम अपने बच्चों की परवरिश कुछ इस तरह से करें कि हम इस दुनिया को ज्यादा सेंसिटिव और मैच्योर्ड एडल्ट्स दे सकें. दोस्तों जरा सोच कर देखिए, हर रोज स्कूलों में, मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बुली किया जाता है, जिनका शेमिंग किया जाता है, जिनका मजाक उड़ाया जाता है. आप सोचिए किस मेंटल परिस्थिति से ये बच्चे गुजरते होंगे. उनके मोरल और उनकी सेल्फ एस्टीम की तो धज्जियां उड़ जाती होंगी.
एक और बहुत पावरफुल बात निकिता ने बताई, वो ये कि जब उन्हें ये एहसास हुआ कि वो दोनों ही आंखों से ब्लाइंड है, तो उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, सबसे पहले तो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और फिर ये डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी इस कमजोरी को अपनी आइडेंटिटी नहीं बनने दूंगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने इंटेलिजेंस और अपनी एबिलिटीज के आधार पर अपनी आइडेंटिटी बनाऊंगी और बाकी जो लोग हैं उनके साथ पेस मैच करने के लिए मैं डबल एफर्ट डालूंगी और अपने आप को मजबूत बनाऊंगी। दोस्तों, हम सब में भी कई सारी कमियां हो सकती है और हमें सीखना यही है कि हम हमारी उस कमजोरी या कमी पर फोकस ना करके अपनी जो स्ट्रेंथ है, अपनी जो नीश है, हमारे अंदर की जो खूबियां हैं उसको पहचानें और सिर्फ पहचाने ही नहीं बल्कि उसके ऊपर काम करें, डबल एफर्ट डालें और अपने आप को सक्षम बनाएं। निकिता जब अपनी एग्जाम में वो रीडर एंड राइटर की बात बता रही थी तो मुझे अपने जीवन का एक एक्सपीरियंस याद आ गया। मैं भी किसी के लिए राइटर रहा हूं, रीडर रहा हूं, और जब मैं वो कर रहा था मेरी दिल की फीलिंग यही थी कि यार मैं कितना खुशनसीब हूं। मैं बहुत अच्छी तरह से देख पाता हूं, सुन सकता हूं, लिख सकता हूं, चल सकता हूं, भाग सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, सोच सकता हूं, लेकिन यहां कोई है शायद जिसमें यह क्षमता मुझसे कम है। और दोस्तों, आज भी यही मेरे ख्याल में आता है कि भगवान ने इतनी सारी गिफ्ट हमको दी है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम में से कई सारे लोग हैं जो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, मेरे साथ ही क्यों ऐसा, मेरे पास ये क्यों नहीं। तो दोस्तों, हमें वही स्पिरिट लेकर के जीवन में आगे बढ़ना है जो निकिता ने हमें सिखाया। सो ये बोल पाना, चल पाना, सोच पाना, लिख पाना, सारी बातें कर पाना, ये जो है, ये these are the gifts of God to us, and what we do with these gifts is our gift to God. How to prepare ourselves for success. निकिता ने एक बहुत अनोखा इसका तरीका हमें बताया। जब वो बता रही थी राइटर के साथ जब एग्जाम दे रही थी, तो उन्होंने कहा कि कुछ कम्युनिकेशन गैप की वजह से वो 10% गलतियां हो सकती है, लेकिन उनको ये बिल्कुल पता था कि ये जो गलतियां हो रही है ये उनके कंट्रोल से बाहर है। और उन्होंने कहा कि मेरे कंट्रोल में जो था वो ये था कि मैं अपने प्रिपरेशन को बढ़ा दूं। उन्होंने कहा मैं अपनी प्रिपरेशन 200% कर दूं ताकि ये 10% गलतियां हो तब भी मेरे मार्क्स कम ना हो। दोस्तों, हमारे साथ भी जीवन में यही होता है। हमारे साथ भी ऐसी बहुत सारी बातें होती है जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। हमें जो ध्यान देना है वो अपने कंट्रोल में जो है उस पर ध्यान देना है, अपने लक्ष्य को बढ़ा देना है और अपने प्रिपरेशन को भी डबल कर देना है ताकि हमें जो चाहिए वो हम हासिल कर सकें। वो कहते हैं ना, एम फॉर द स्काई एंड यू विल बी ऑन द सीलिंग, एम फॉर द सीलिंग एंड यू विल फाइंड योरसेल्फ ऑन द फ्लोर। तो दोस्तों, ये थी निकिता की एजुकेशन और हायर एजुकेशन की कहानी, और इसके बाद की कहानी तो और भी प्रेरणादायी कहानी है और उसको हम देखेंगे पार्ट 2 में। आज का हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, आपके कमेंट्स लिखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे बहुत जल्द पार्ट 2 लेकर के। तब तक प्लीज टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। नमस्कार।